Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to the second half of week number 5 of Mobile Ad Hoc Network course. Today we are studying a basic protocol for Mobile Ad Hoc Network, and the name of the protocol is Destination Sequence Distance Vector, or DSDV in short. जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेकेंड हाफ में वी विल बी एक्सप्लोरिंग मोर अबाउट द प्रोटोकॉल. So we will consider another example of DSDV, and we will study in more details how it works. जिस तरह मैंने बताया था कि जो DSDV प्रोटोकॉल है, it actually based on distance vector protocol. So first we are going to explore how distance vector actually works, and then we will see DSDV in action in more details, and finally we will conclude this lecture. So let us revise some of the properties, characteristics of mobile ad hoc network. Topology may be quite dynamic, as you see from the examples of routing के जो आपके पास nodes हैं, they are free to move in any direction at any time at any speed, right? So what does it mean? It means कि जो हमारे पास ad hoc network में जो network की topology है, that is very dynamic. Changes are very frequent. So जो आपके पास जो nodes की mobility है, उसका जो end effect है वो network की topology पे होता है. Another characteristic, just to remind you, कि जो आपके पास ad hoc networks हैं, they are distributed in nature. वहाँ पे कोई centralized authority नहीं होती, कोई centralized administrative host नहीं होता जो कि पूरे network को administer कर रहा होता है. इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी, एंड इट इज़ मोर रेलिवेंट to some types of mobile ad hoc network subtypes, subcategories, for example WSN or underground water sensor networks or underwater sensor network and so on. वहाँ पे हमारे पास जो hosts हैं, जो nodes हैं, उनके पास जो resources हैं, for example power is a resource, they are battery powered nodes or host. तो there we have power is an issue because वहाँ पे जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती हैं फ्रॉम द बैटरीज. सो जो ऑपरेशन ऑफ द नोड्स हैं, दे मस्ट बी एबल और दे मस्ट डील विद सच इश्यूज़ के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पैकेट वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं टूवर्ड द डेस्टिनेशंस, तो उस ट्रांसफ़र ऑफ द पैकेट में या रूट को इस्टेब्लिश करने में या कंट्रोल मैसेजेस को प्रोपेगेट करने में इनसाइड द नेटवर्क उनकी जो एनर्जी है वो कम से कम यूटिलाइज हो सके. सिमिलरली जो आपके पास रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ भी हैं दैट मस्ट बी एड्रेस्ड. द फर्स्ट वन इसके जो आपके पास रूटिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, you have to try to make them as simple as possible in understanding and as simple as possible in operation as well, because जो distributed nature है, it sometimes it makes the development and the implementation of the protocol for such type of networks a challenging task. So your objective is to keep them as simple as possible. Similarly जो storage है, रूटिंग प्रोटोकॉल्स के केस में जो स्टोरेज है, इट मस्ट बी लेस. जो प्रोटोकॉल्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो कम से कम मेमोरी को यूटिलाइज करें, स्पेशली इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग अ प्रोटोकॉल फॉर सम सब कैटेगरीज ऑफ द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, जहाँ पे पावर कंजम्पशन इज़ एन इशू, जहाँ पे जो आपके होस्ट हैं वो बैटरी पावर्ड है, तो वहाँ पे यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो लेस स्टोरेज हैं आपके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो कम से कम मेमोरी को ऑक्यूपाई कर सके. सिमिलरली वी हैव टू कंसिडर द लूप प्रॉब्लम इन रूटिंग, जिस पे हमने फर्स्ट हाफ में डिटेल से बात की. वहाँ पे हमने एग्जांपल भी देखा कि अगर आपके पास 3 नोड्स हैं और वो उनमें से 2 नोड्स जो हैं कोई एक पैकेट एक दूसरे को फॉरएवर वो डिलीवर करते रहें, in the attempt to find a way to
ट्रांसमिट द पैकेट टूवर्ड द डेस्टिनेशन, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, वो नहीं तो नोड्स के दरमियान जो है वो लूप करता रहता है फॉर एवर. So there is a problem which is very much common specifically in the distance vector protocol. So remember, जब भी आप लोग प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेंगे फॉर मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आपका प्रोटोकॉल है उसमें ये वाला प्रॉब्लम अगर ना हो. Another thing that must be addressed while designing a protocol for mobile ad hoc network is that you have to keep the exchange of control messages as low as possible. और मैंने आपको बताया कि जो आपके कंट्रोल मैसेजेस हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं इनसाइड द नेटवर्क टोपोलॉजी, तो उसका एंड इफेक्ट जो है वो आपके चैनल यूटिलाइजेशन पे होगा, क्योंकि हम जो चैनल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ शेयर्ड अमंग ऑल द नोड्स. So if you are communicating, if you are transmitting a large number of control messages, जो आपका bandwidth है वो आप बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं for control messages instead of the actual data packets, right? So अगर आपके control messages कम होंगे तो आपका overhead कम होगा और आपके जो resources हैं especially जो channel utilization है वो आप efficiently उसको manage कर सकेंगे. एंड पावर कंजम्पशंस, इस पर हम बात कर चुके हैं कि सम स्पेसिफिक कैटेगरीज में योर प्रोटोकॉल मस्ट बी एबल टू डील विद सच इश्यूज दैट आर रिलेटेड विद द पावर कंजम्पशंस, कि कम से कम एनर्जी को वो यूटिलाइज करें, राइट? इसके अलावा मल्टीपल डिसजॉइंट रूट्स हैं, इसको अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इनफाइनाइट काउंट पे बात करेंगे इन दिस लेक्चर. सो उस पर अभी हम बात करेंगे in a moment. एंड आल्सो चूँकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो हाईली डायनामिक है, वहाँ पे न्यू नोड्स नेटवर्क को ज्वाइन भी करते हैं, एग्जिस्टिंग नोड नेटवर्क को लीव भी करते हैं. इसके अलावा कभी लिंक्स आपके पास अनअवेलेबल होंगे, कभी जो है वो फ्रीक्वेंट चेंजेस, कभी पावर इश्यूज आएंगी, कभी नोड्स जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा होगा. सो इन ऑल सच सिनारियोज योर प्रोटोकॉल मस्ट बी able to deal with these scenarios in a fast and efficient way. अगर एक रूट अवेलेबल नहीं है, so your protocol must be able to find alternative routes to route your packet toward the destination. And not only possible to make alternative route, but also to make the alternative routes available as fast, as quick as possible, right? So these are some of the issues that need to be addressed specifically if you are designing a routing protocol for mobile ad hoc networks. Okay, so let me revise some of the concepts के जो आपके पास protocols हैं, routing protocols, वो या तो table driven approach को follow करते हैं या वो on demand approach को follow करते हैं. Table driven approach को हम proactive भी कहते हैं, while on demand को हम reactive भी कहते हैं. And in some scenarios you can combine the best features of both the protocols, and that approach is called the hybrid approach. So sometime hybrid, sometime proactive, while sometime reactive. We have different options available for the development or for the design of the mobile ad hoc network. अब जिस तरह मैंने पहले बताया था कि रूटिंग के केस में जो रूटर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, रूटर्स पे रूटिंग टेबल्स जो हैं वो रन कर रहे होते हैं. रूटिंग टेबल्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, और जो आपके पास प्रोटोकॉल है वो इंटरनली किसी एल्गोरिथम पे बेस करते हैं. सो आपके पास एल्गोरिथम्स जो है जो अवेलेबल है वो नॉर्मली दो कैटेगरीज में हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड दे आर लाइक द लिंक स्टेट एल्गोरिथम्स और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स. इस पे हमने पार्ट फर्स्ट में डिटेल से बात की थी, लेकिन स्टिल इन द पार्ट सेकंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सम more points about the routing algorithm categories, and they are the link state and distance vector. So link state में actually जो आपके पास हर एक नोड होता है, it will maintain a whole view of the network topology. जबकि ऑन द अदर साइड जो आपके पास डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम्स हैं या उन पे जो प्रोटोकॉल बेस करते हैं, वहाँ पे जो आपके पास नोड्स हैं, हर एक नोड इट विल मेंटेन अ
maintains the distance of each destinations. For example, distance can be the number of hops required to reach to the destinations by following a specific path. So first let us elaborate link state protocol and their features or characteristics. So link state protocols. So in link state protocol, its operation is like finding the shortest path. जो डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाउ टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन अ सेंडर and a receiver or between a source and destination. So link state protocols algorithms, they also try to find the shortest path available between the source and the destination. In such protocols or in algorithms, जो आपके पास nodes होते हैं, it will have to maintain a view of the network topology, however with a cost that is associated with each of the link. अगर आपने A से B पे कोई पैकेट सेंड करना है, so what is going to be the cost? B से C पे what is going to be the cost associated with that link? So हर एक लिंक से associated cost, and then from source to destination उन cost को हम add करते हैं, and then we select the best path, that is the shortest path that is available toward the destinations. In link state protocols, how it is achievable? That is achievable by periodically broadcasting. जो link cost है हर दो नोड्स के दरमियान, वो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं इन टू अदर नोड्स, और इसके लिए जो मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं वो फ्लडिंग हो सकता है. बाय यूजिंग फ्लडिंग you broadcast the cost associated with each and every links that connect to nodes. Here is an example. For example, the cost of the link that join node A and node B, that is broadcast. Similarly, the link that connect B with C or the link that connect B with D, हर एक link से associated cost को हम broadcast करते हैं in the network. So for example, A से B के दरमियान जो cost हैं, सब nodes को वो पता होना चाहिए. So they can calculate the best route possible in order if they have something to deliver towards A. On the other hand, जो आपके पास सेकेंड अप्रोच है डिस्टेंस वेक्टर, जो हमारा प्रोटोकॉल है DSDV, दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच. इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड बेलमैन-फोर्ड भी कहते हैं और समटाइम रिप, बिकॉज रिप इज़ अनदर प्रोटोकॉल, बट चूंकि ये फॉलो करता है डिस्टेंस वेक्टर टेक्निक को, दैट इज़ द फर्स्ट प्रोटोकॉल विच इज़ बेस्ड ऑन सच अप्रोच, तो दैट इज़ वाई समटाइम इट इज़ कॉल्ड रिप. और बेलमैन-फोर्ड पे चूंकि ये बेस्ड है खुद, सो इसको हम बेलमैन-फोर्ड भी कहते हैं. What happens is in distance vector approach, यहाँ पे हर एक नोड एक रूटिंग टेबल को मेंटेन रखता है. प्रीवियस केस में लिंक स्टेट के केस में वी डजंट टॉक अबाउट द रूटिंग टेबल. हाउएवर इन डिस्टेंस वेक्टर दैट दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट कि हर एक नोड पे रूटिंग टेबल होता है. रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस लेक्चर, वहाँ पे हमने नोड 1 और नोड 15 के दरमियान एक पैकेट सेंड करना था, तो उसके लिए हमने नोड 1 के रूटिंग टेबल को कंसिडर किया था. वो रूटिंग टेबल में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और उनकी अपनी मीनिंग्स होती हैं. अभी हम इसको दोबारा भी रिवाइज करेंगे. सो डिस्टेंस वेक्टर में हर एक नोड पे एक रूटिंग टेबल जो है वो रन कर रहा होता है. नाउ व्हाट डज इट कंटेन्स? In a routing table, you have all available destinations. जो नेटवर्क की टोपोलॉजी है, जितने नोड्स आपके पास नेटवर्क्स में हैं, उनसे अवेलेबल इंफॉर्मेशन रूटिंग टेबल में होती है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द रूटिंग टेबल इज द नेक्स्ट हॉप और द नेक्स्ट नोड दैट a node is going to use in order to reach to the final destination. For example, multi hop scenario है, आपने कोई पैकेट सेंड करना है टुवर्ड द डेस्टिनेशन. नाउ हु इज responsible for forwarding the packet? Who is going to be the next node to participate in forwarding process, right? So next hop की information या next available node की information that is also part of the routing table, जो कि हम maintain रखते हैं at each of the available node. And also the number of hops या the cost, the distance to reach to the final destinations. A से B पे what is the cost? B से C पे what is the cost? C से D पे what is the cost? And then you add all the cost
of the links, associated with each links, and then you calculate the final cost in order to reach to the final destination. Another characteristics of the distance vector protocols is कि यहाँ पे हम जो routing tables हैं उनको periodically share करते हैं with all the neighbors in order to maintain the topology. जो आपके पास up to date information होती है about the network topology that is exchange between the neighborhoods from time to time. Okay, distance vector. हमने कहा कि यहाँ पे हर एक नोड पे we are dealing with routing tables. So here is an example of distance vector protocol and their routing tables. What you see here is 3 nodes. हमारे पास 3 nodes हैं. And to better understand the example, they have been colored. We have a blue color node, we have a red color node, and we have a green color node, right? So we have 3 nodes, node A, node B, and node C. And also the nodes are linked, are connected with one another by links. And there is an associated cost with the links. For example, A से B के दरमियान जो लिंक है उसकी जो कास्ट है वो 1 है. सिमिलरली B से C के दरमियान जो लिंक है उसकी जो कास्ट है वो हमारे पास 2 है. Now let us consider the forwarding tables or the routing tables. सबसे पहले node A. We have 4 columns here. First column contain information about the destinations. So destination आपके पास A है, B है और C है. Second column is the next available node that is responsible for forwarding the packet toward the destination. The third column represent the cost associated with that route, with that link, right? So the third column is metric, and that is actually the cost for sending the packet from source to destination. While the fourth column is dot dot dot, which means के यहाँ पे और भी columns हैं, more than 3 columns we are dealing in the or we have in the routing tables. So now suppose कि आपके पास कोई packet है and your destination is B, source is A, node A जो है वो for example node A जो है वो कोई पैकेट सेंड करने जा रहा है टूवर्ड नोड B. Node A is our source, node B is our destination, and we are using distance vector approach. So अगर आपने B को कोई पैकेट सेंड करना है तो रूटिंग टेबल से आपको मालूम होगा कि जो नेक्स्ट नोड रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ B, यानी आपने पैकेट किसको सेंड करना है B को, and that is directly connected, and the cost associated with the link is 1 हाफ भी आप कह सकते हैं. कॉस्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं. नाउ सपोज करें कि यू हैव अ पैकेट एट नोड ए एंड द पैकेट इज डेस्टिनेटेड फॉर नोड सी. सो इन दिस केस जब आप रूटिंग टेबल को कंसल्ट करते हैं सो योर डेस्टिनेशन इज सी, राइट. लेकिन इस केस में आपने पैकेट किसको देना है, आल्सो टू नोड बी. हाउएवर द कॉस्ट नाउ इज 3. किस तरह, सबसे पहले आप पैकेट देंगे बी को, द कॉस्ट इज 1, और फिर B जो है वो अपने रूटिंग टेबल को कंसल्ट करेगा, द डेस्टिनेशन इज C, सो द नेक्स्ट नोड रिस्पॉन्सिबल इज C, सो वो C को पैकेट सेंड करेगा. हेयर द कॉस्ट इज 2, सो 2 + 1 इज 3, सो दैट इज वाई वी हैव द मैट्रिक 3 हेयर. ओके, नाउ कंसिडर करें कि योर सोर्स इज C वाइल योर फाइनल डेस्टिनेशन इज A. यानी अब C के पास कोई पैकेट है जो कि वो सेंड करने जा रहा है टूवर्ड्स A बाय यूजिंग द डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच. आप देख सकते हैं कि C इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद A. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉरवर्डिंग टेबल या रूटिंग टेबल को कंसल्ट करेंगे. आवर डेस्टिनेशन इज़ A. नेक्स्ट नोड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट टूवर्ड द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ B. तो C अपने पैकेट को किसके हवाले करेगा, B के हवाले करेगा. एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड with the link is B. जैसे ही पैकेट B को आएगा, पैकेट को वो इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि डेस्टिनेशन इज़ A,
तो इस केस में ये क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड ए एंड द कास्ट एसोसिएटेड हेयर इज 1. So 2 plus 1 is 3. So that is why the metric here is 3. This is how distance vector protocols work by and how they maintain or how they consult the routing tables. अब कंसिडर करें एक सिनारियो को कि जहाँ पे जो कास्ट एसोसिएटेड है विद वन ऑफ द लिंक वो चेंज होती है. किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास B और C के दरमियान जो कास्ट थी वो यहाँ पे 2 थी. नाउ द कास्ट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 2 to 1. अब चूंकि डिस्टेंस वेक्टर है, जैसे ही चेंज इन टोपोलॉजी अकर हो, द नोड इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड और टू कम्युनिकेट और टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद देयर नेबर्स. इस केस में B क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा विद द नोड C एंड आल्सो विद नोड A एंड द टेक्निक इज ब्रॉडकास्ट. सो B क्या करेगा, B विल ब्रॉडकास्ट द न्यू रूटिंग इंफॉर्मेशन टू हिज नेबर्स एंड द नेबर्स इन दिस केस आर A एंड B एंड द इंफॉर्मेशन इज लाइक दिस. A उसकी कास्ट पहले भी 1 थी, वो अब भी 1 है. B 0 क्योंकि B खुद है. C इसकी पुरानी कास्ट जो थी वो 2 थी. नाउ द न्यू कास्ट इज 1. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके पास नोड A है वो अपने फॉरवर्डिंग टेबल को अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अपडेट करेगा. किस तरह? लेट अस सी. फाइनल डेस्टिनेशन अगर C है तो नोड जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉरवर्डिंग द टेबल इज B. हाउएवर द कास्ट एसोसिएटेड इज 2 नाउ. पहले ये कास्ट क्या थी, 3 थी. Now the cost is 2. Why it is 2? 1 plus 1 will give you 2. Similarly, you have to update the information here. Okay. पहले अगर C ने A को कोई पैकेट सेंड करना है, so it must go through node B. Okay. अभी भी node B ही रिस्पॉन्सिबल है. However, पहले हमारे पास जो कास्ट थी that was 3. Now the cost is 2. Why it is 2? 1 plus 1 will give you 2. Okay. So this is how we update information if the topology of the network changes. Now consider another scenario. अब change in topology सिर्फ link की cost में change नहीं आती. Sometime a new node will have to join the network and then you have to update the routing tables accordingly. So let us see here. You have a node D which is new. एक नया नोड है विच इज़ नोड D, उसने इस नेटवर्क को ज्वाइन किया है. अब पहला काम हमने क्या करना है, वी हैव टू अपडेट द फॉरवर्डिंग और द रूटिंग टेबल्स. लेकिन उसको अपडेट करने से पहले यू नीड टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन विद द नोड्स. सो हियर इज़ द इंफॉर्मेशन. D किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, C के साथ. द कास्ट एसोसिएटेड इज़ 1 हियर. सो D क्या करेगा, है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो C के साथ शेयर करेगा. आई एम D एंड आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड विद यू, सो द कॉस्ट इज 0. सो C क्या करेगा, C अपने रूटिंग टेबल को अपडेट करेगा. नाउ अगर डेस्टिनेशन D है तो उसके लिए जो नेक्स्ट हॉप है वो D ही है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड द कास्ट इज़ 1. अब C इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा अलॉन्ग विद B. Right? So the information is like this. A, B, C. ये information तो पहले से ही forwarding tables में थी. What is new is D. Information about the new node D. And that is the cost associated is 1. तो accordingly B अपने routing table को update करेगा by inserting a new entry about D. And that is here. अगर destination D है तो कौन इसके लिए responsible होगा, C. The next hop is C. And what is the cost? The cost associated is 2. Why it is 2? 1 plus 1 will give you 2. Similarly, B अपने routing table को share करेगा with its neighbor and the neighbor is A. So the information is here. D to the new information. Accordingly, जैसे ही ये information, ये updates A को receive होती हैं, वो node अपने routing table को update करेगा. किस तरह? For example, अगर A
नोड डी को कोई पैकेट सेंड करना चाहे, सो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नोड? द नेक्स्ट नोड इज गोइंग टू बी बी, एंड व्हाट इज द कॉस्ट or the metric or what is the distance? So there is 3. 1 plus 1 plus 1 will give you 3, right? So for example, node A want to send a packet to the new node which is D. So first पहला काम node A क्या करेगा? अपने routing table को consult करेगा. Destination is D. Who is responsible? Node B. तो वो पैकेट को B के हवाले करेगा, राइट? बी अब पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस को देखेगा. डेस्टिनेशन एड्रेस इसको पता चलेगा कि द फाइनल डेस्टिनेशन इज डी. हु इज रिस्पॉन्सिबल और हु इज द नेक्स्ट इन द रूट? नेक्स्ट नोड दैट इज सी. तो ये पैकेट को सी के हवाले करेगा. जैसे ही पैकेट सी को मिलेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस को वो कंसल्ट करेगा, देखेगा. सो हेयर the destination is D and that is directly connected, so वो D के हवाले करेगा, the packet will arrive at the destination. Now let us consider another scenario and there is a broken link. पहले हमने देखा कि अगर लिंक की कॉस्ट चेंज होती है तब क्या होगा. फिर हमने देखा कि अगर कोई नया नोड नेटवर्क को ज्वाइन करता है व्हाट विल हैपन. एंड नाउ लेट अस सी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग नोड जो कि नेटवर्क दैट इज पार्ट ऑफ द नेटवर्क, वो नेटवर्क को लीव करता है या उसका जो लिंक है वो ब्रेक होता है ड्यू टू एनी रीजंस. सो व्हाट इज गोइंग टू बी, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? सो लेट अस सी. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, सो द नोड कनेक्टेड, द एंड नोड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग दिस इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग a special symbol, and that is infinity in the metric or in the distance column or in the hop column. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक अभी अवेलेबल नहीं है. सो सी ने क्या किया? इस इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट किया इन द इट्स रूटिंग टेबल. फाइनल डेस्टिनेशन इज डी, नेक्स्ट हॉप इज डी, द लिंक इज़ नॉट अवेलेबल. सो मैं अगर कोई मुझे पैकेट सेंड कर रहा है फॉर डी, उसको मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकता बिकॉज द नोड इज़ नॉट अवेलेबल, द लिंक इज़ ब्रोकन, राइट? हाउएवर हियर इज़ अ प्रॉब्लम. रिमेंबर द लूप प्रॉब्लम, right? So distance vector में loop problem is very common. How it occurs? Let us see a routing loop problem in action. Same scenario. C को तो पता चल गया कि D is not available, the link is break. लेकिन ये information अभी तक B को नहीं मिली और अभी तक A को नहीं मिली. It will take some time to propagate through the network. Meanwhile, नोड बी क्या कर रहा है? नोड बी अपनी इंफॉर्मेशन वो सी के साथ शेयर कर रहा है, राइट? क्योंकि ये अपडेट जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द नेटवर्क देयर इज़ पॉसिबल. तो सेम टाइम पे यहाँ पे नेटवर्क जो है टोपोलॉजी चेंज हो रही है, डी जो है वो नेटवर्क को लीव कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सी को दो इन्फॉर्मेशन मिल रही है. एक इन्फॉर्मेशन को मिल गई डी से कि द लिंक इज़ नॉट अवेलेबल, and after some time very quickly receive information from node B कि D is available. ये अपनी outdated information share कर रहा है with its neighbor that is A and D कि D is available. Next hop responsible for D is C and the cost is 2. And similarly here next जो आपके पास जो node है D that is available, the next hop responsible is B and the cost associated is 3. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो गई है. although the D is not available, however जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि आउटडेटेड है, जो कि ओल्ड इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम बी, इसने उसको सेव कर लिया. इन्फिनिटी को इसने रिप्लेस कर लिया विद अ न्यू कॉस्ट एंड दैट इज 3. अब क्या होगा? यहाँ पे अ लूप विल अकर, राइट? हाउ? बी के साथ कोई पैकेट है एंड द पैकेट इज़ फॉर डी, तो बी उसको किसके हवाले करेगा? सी के हवाले करेगा, ओके? अब सी के पास कोई पैकेट है, डेस्टिनेशन इज़ डी, डी किसके हवाले करेगा? बी के हवाले करेगा. अब पैकेट क्या होगा? फॉर एवर इन दोनों नोड्स के दरमियान वो मूव करता रहेगा, डेस्टिनेशन तो है नहीं. सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ लूप एंड दैट इज़ वेरी कॉमन इन डिस्टेंस वेक्टर, ओके?
अब ये जो लूप का प्रॉब्लम है, इट विल लीड टू अनदर प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉल्ड काउंट टू इन्फिनिटी, राइट। काउंट टू इन्फिनिटी मीन के ये जो पैकेट्स हैं ये इन दोनों के दरमियान फॉर एवर जो है वो मूव करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैकेट जो है डी को डी के लिए अगर कोई पैकेट है तो वो सी के पास आएगा एंड द कास्ट इज़ 2। सी क्या करेगा, बी को सेंड करेगा, बी जो है वो अगेन उसकी कास्ट को कैलकुलेट करेगा और सी को आएगा, फिर सी से जो है दोबारा वो बी को आएगा एंड सो ऑन। सो इस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच अकर्स ड्यू टू लूप, इसको हम कहते हैं काउंट टू इन्फिनिटी। टू समराइज, जो डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच है उसको आप डायरेक्टली मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लूप्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इन्फिनिटी, काउंट टू इन्फिनिटी। इन प्रॉब्लम्स की वजह से डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते। सो वी डिज़ायर a new protocol, a new solution that is based on distance vector, but it will be able to address the above mentioned problem. It will be able to address the loops problem and it should be able to address the count to infinity problem. And the new solution designed for the MANET based on distance vector is called DSDV protocol. So now we are going to study DSDV protocol with the help of an example. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, DSDV डेस्टिनेशन बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसके पास ग्लोबल व्यू ऑफ द नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें जो है जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं दैट इज टेबल ड्रिवन, जिसको हम प्रोएक्टिव भी कहते हैं। इस अप्रोच में क्या होता है कि हर एक नोड विल मेंटेन रूटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल नोन डेस्टिनेशंस इन द फॉर्म ऑफ रूटिंग टेबल्स। और ये जो रूटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये जो रूटिंग टेबल्स है, इट मस्ट बी अपडेटेड पीरियोडिकली फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो ट्रैफिक ओवरहेड है इन केस ऑफ DSDV, दैट इज़ वेरी मच हाई। इवन आप जो है वो अपडेट्स को शेयर कर रहे हैं, पीरियोडिक जो अपडेट्स होती हैं अमॉन्ग द नोड्स, even if they are not desired, if even they are not required, if even there is no change in the network topology, still हम periodically updates करते रहते हैं among the nodes. So इसके अलावा कुछ रूट्स को हम मेंटेन रखते हैं as part of the protocol functioning, लेकिन वो रूट्स कभी हम यूज़ ही नहीं करते। तो जो दूसरा अप्रोच है लिंक में, वहाँ पे हम लिंक्स को, रूट्स को एस्टेब्लिश करते हैं when they are required. अगर आप कोई रूट कभी यूज़ ही नहीं करते तो वो कभी इस्टेब्लिश भी नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ DSDV टेबल ड्रिवन अप्रोच, यहाँ पे हम रूट्स को मेंटेन रखते हैं, उनको अपडेट्स भी रखते हैं, इवन इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड, इवन इफ दे आर नेवर यूज्ड, स्टिल वी हैव टू मेंटेन दोज रूट्स। सो DSDV जो प्रोटोकॉल है, इट विल कीप द सिंप्लिसिटी ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, लेकिन स्टिल इट विल गारंटीड लूप फ्रीनेस ऑपरेशन ऑफ द प्रोटोकॉल। अब किस तरह ये इस लूप प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा या इन्फिनिटी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा? इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम बाय यूजिंग अनदर कॉलम इन द रूटिंग टेबल, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस नंबर, डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर। रिमेंबर द डेस्टिनेशन सीक्वेंस नंबर, कि जब भी टोपोलॉजी चेंज होती है सीक्वेंस नंबर इज चेंज। सो जो पुराना वाला सीक्वेंस नंबर होता है, नया वाला सीक्वेंस नंबर उसको रिप्लेस कर लेता है। इसके अलावा जो DSDV प्रोटोकॉल है, चूंकि हमारे पास मोबाइल एडहॉक नेटवर्क इज़ अ वेरी डायनामिक इन्वायरमेंट जहाँ पे नेटवर्क की टोपोलॉजी वेरी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। सो आपका जो प्रोटोकॉल है DSDV, ये फास्ट रिएक्ट करेगा टू द चेंजेस that happens in the topology from time to time. Not only react but a fast response, a fast reaction. इसका मतलब है कि it will make available, it will make immediate routes advertisement, it will make immediate route advertisement on significant changes in the routing table, but with rapid response। यानी अगर टोपोलॉजी में चेंजेस हैं तो ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ रूट एडवर्टीजमेंट इन चेंजेस को एकोमोडेट करेगा और साथ में अपने नेबर्स को इन्फॉर्म करेगा रैपिडली, इमीडिएटली अबाउट द चेंजेस। जो DSDV में जो रूटिंग टेबल्स हैं, पहले भी हमने इस पर बात की थी कि वी हैव डिफरेंट कॉलम्स। सबसे पहले कॉलम इज़ अबाउट द डेस्टिनेशंस, जितने नोड्स आपके पास अवेलेबल हैं इनसाइड द नेटवर्क। आप किसी के लिए भी कोई पैकेट सेंड कर सकते हैं, सो दे आर योर पॉसिबल डेस्टिनेशंस।
अब चूंकि मल्टी हॉप इन्वायरमेंट है, सारे नोड्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, सारे नोड्स डायरेक्टली एक दूसरे के वन हॉप नेबर्स नहीं होते. सो वी नीड इंटरमीडिएट नोड्स दैट कैन relay our messages, that can forward our messages toward the destination. So next possible node or next responsible node आपकी डिलीवरी के लिए वो, that is the second column of the table. Third column is the cost, the metric associated with the links or the total cost. Source से destination तक कोई पैकेट सेंड करने में what is the cost involved, and the cost is linked with the is something that is related with the links, जो कि दो nodes को आपस में link करती है. Similarly, we have another column and that is called the sequence number. और sequence number पे हमने बात की कि that is originated from the destinations and they ensures के हमारे पास कोई loop जो है वो अकर ना हो. and जो नए sequence number है they are incremental. नए number हमेशा पुराने number से वो they are high, they are large and they are incremental. और जो है वो पुरानों को जो है वो replace करते हैं. And also we have some extra information like install time कि ये जो incoming पैकेट है बट किस टाइम पे ये रिसीव हुआ है, किस टाइम पे एंट्री जो है वो मेड हुई है इनसाइड द टेबल. सो DSDV में किस तरह जो है वो रूट एडवर्टीजमेंट होती है. सो एडवर्टीजमेंट के लिए हमेशा जो है वो जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं दैट इज़ कि आपने एडवर्टीजमेंट करनी है टू द ईच नेबर. यानी फॉर एग्जाम्पल वी हैव नोड ए और उसके नेबरहुड में नोड बी और नोड सी है. अब नोड ए अपनी रूटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा विद नोड बी एंड नोड सी. इस रूटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज एक्चुअली अ रूटिंग टेबल. उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन एड्रेसेस, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मैट्रिसेस, द हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स और द कॉस्ट ऑफ द लिंक्स, or the cost of sending the packet from source to destination. इसके अलावा sequence number that is generated by the destination वो and the time and some other information. So such type of information इनको हम कहते हैं route advertisement and that is frequently exchanged between the neighbor nodes in DSDV protocol. There are some rules for the sequence number and they are very simple. कि सबसे पहले जो है वो इंक्रीमेंटल फॉर्म में होंगी. एंड द सेकेंड रूल इज़ के अगर कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, वो डाउन है, तो उस केस में सीक्वेंस नंबर तो इंक्रीज़ होगा भी, लेकिन साथ में जो आपके पास जो मैट्रिक है उसमें एक स्पेशल सिंबल हम एंटर करते हैं एंड दैट इज़ द इन्फिनिटी सिंबल इन केस इफ़ द नोड इज़ नो मोर अवेलेबल. रूट एडवर्टीजमेंट के बाद वी हैव द रूट सिलेक्शन एंड रूट सिलेक्शन द बेस्ट पॉसिबल रूट को हम सेलेक्ट करते हैं दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल. अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है हम क्या करते हैं उसको पहले हम कंपेयर करते हैं विद आवर ओन रूटिंग टेबल. तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी होती है उनको हम अपडेट करते हैं कि अगर कोई शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है तो उसको हम अपडेट कर लेते हैं. यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवर फोकस इसके हम उस रूट को सेलेक्ट करें जहाँ पे जो है आपके पास बेटर मैट्रिक वैल्यू हो, राइट. यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो आप कह सकते हैं. हम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को सेलेक्ट नहीं करते, देयर आर सम अदर पैरामीटर्स एज वेल, बट टू कीप थिंग्स सिंपल वी ऑलवेज सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ. अब अगर कोई सिचुएशन इस तरह की है कि जहाँ पे दो सीक्वेंस नंबर हैं और दोनों सेम हैं, तो उस केस में आप किसको फिर सेलेक्ट करेंगे? नॉर्मली हम सेलेक्ट करते हैं उस सीक्वेंस नंबर को जो कि हमारे पास इंक्रीमेंटल हो. फॉर एग्जांपल आपके पास किसी रूट के लिए दो सीक्वेंस नंबर है 1 एंड 2, तो आप क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट करेंगे, 2 1 को रिप्लेस करेंगे कि बिकॉज जो आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा जो हाई सीक्वेंस नंबर होता है उसमें होती है. लेकिन अगर कोई दो सीक्वेंस नंबर सेम आ रहे हैं तो उस केस में वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द मैट्रिक्स नंबर जो कि कम हो, बेटर मैट्रिक्स नंबर. यानी अगर आपके पास डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो रूट्स अवेलेबल हैं तो दोनों के सीक्वेंस नंबर भी सेम है, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? जिसकी जो कास्ट है वो दोनों में सबसे कम हो, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स और सम नोड्स. अगेन द एग्जांपल इज वेरी सिमिलर. We have 3 nodes and the nodes are node A, node B and node C. They are colored differently in order to differentiate them from one another. We have a routing table available at all the nodes.
नोड ए हैज़ अ रूटिंग टेबल, उसमें 4 कॉलम्स हैं एंड द कॉलम्स आर अबाउट डेस्टिनेशन नोड्स or the next node that is responsible for forwarding the table, the metric associated like the cost of sending the packet from source to destination. अगर आप इस link को follow करते हैं, so what is going to be the total cost and also the sequence number. Okay, similarly node B, same table, same columns but with different values, and node C, same column, same table, same column but with different values in the fields. सपोज करें नोड ए पैकेट सेंड करने जा रहा है टूवर्ड नोड सी. इन दिस केस आवर सोर्स इज ए, आवर डेस्टिनेशन इज सी. सो दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द डिस्टेंस वेक्टर जो कि अभी हमने स्टडी किया. सबसे पहले ए रूटिंग टेबल को कंसल्ट करेगा, डेस्टिनेशन इज सी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बी, पैकेट को बी के हवाले करेगा, बी को सेंड करेगा, बी अपने टेबल को कंसल्ट करेगा, डेस्टिनेशन इज सी, सी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड तो सी के हवाले करेगा. And the total cost for sending a packet from A to C is 1 plus 2, and that is 3, which is written here in the routing table at node A. Similarly, we have a sequence number associated with this row, or a sequence number associated with all rows actually. So the sequence number here is 586. That is this sequence number is actually generated by the node C, the destination, and that is shared with the other nodes. किस तरह ये सीक्वेंस नंबर जनरेट होते हैं, प्रोपगेट होते हैं, उसको अभी हम देखते हैं. ओके, सो हियर वी हैव अनदर सिनारियो ऑफ द सेम एग्जांपल. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट अस सी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिंक है जो कि बी और सी को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसकी कास्ट चेंज हो जाती है फ्रॉम 2 to 1. There is a change in the topology. अब क्या होगा जी, दिस कास्ट जो कि चेंज हुई है फ्रॉम 2 to 1, बी क्या करेगा, इसको अपडेट करेगा और इस अपडेटेड इंफॉर्मेशन को फिर वो शेयर करेगा विद इट्स नेबर. तो सबसे पहले बी क्या करेगा, अपने टेबल को जो रूटिंग टेबल है उसमें ये एंट्री अपडेट करेगा बाय चेंजिंग द कास्ट ऑफ द रूट एंड आल्सो बाय इशूइंग अ न्यू सीक्वेंस नंबर. यहाँ पे अगर आप देखें बी से बी की जो कास्ट है वो 0 है एंड द सीक्वेंस नंबर इज 100. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी टू बी सेम लिंक, कास्ट उसकी चेंज हो गई है, कास्ट फ्रॉम बी टू सी इज चेंज. सो वी आर एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सीक्वेंस नंबर को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं फ्रॉम 100 to 102. सो टू पुट इट सिंपल, वी हैव चेंज एन एंट्री, अ लिंक कास्ट, एंड नाउ वी नीड टू प्रोपगेट दिस इंफॉर्मेशन टू आवर नेबर्स. और इसके नेबर्स क्या हैं, ए हैं और बी हैं. तो हम इस कास्ट को, इस इंफॉर्मेशन को बी क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, सेंड कर रहा है, शेयर कर रहा है विद ए एंड सी. किस तरह, लेट अस सी. ए एंड बी एंड सी, ए और सी की इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट वही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस नंबर है दैट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 100 to 102. जैसे ही ये इंफॉर्मेशन ए को मिलती है या ये इंफॉर्मेशन सी को मिलती है, दे हैव टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस अकॉर्डिंगली इन देयर ओन रूटिंग टेबल्स. सो हियर यू कैन सी कि जो नोड सी है उसने इसको अपडेट किया है, राइट. व्हाट हैज़ बीन चेंज, द मैट्रिक. if you see the cost from B to B here is 2 while the new cost here is 1. So actually the cost has been changed. लेकिन किस तरह हम उसको बताएंगे कि this is the latest information by using a sequence number. So अगर आप देखें, जैसे ही इंफॉर्मेशन इसको मिलती है, सीक्वेंस नंबर को वो देखता है, ओके द सीक्वेंस नंबर हैज़ बीन इंक्रीमेंटेड फ्रॉम 100 to 102. तो वो क्या करेगा, पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करेगा विद द न्यू वैल्यू. सो यू कैन सी पुरानी वैल्यू यहाँ पे 2 थी, नाउ द न्यू वैल्यू वी हैव हेयर इज़ 1. अब सपोज करें नोड ए नोड बी को कोई मैसेज, नोड ए नोड सी को कोई मैसेज सेंड करने जा रहा है, राइट. सो प्रोसीजर इज सेम.
सबसे पहले नोड ए कंसल्ट करेगा अपने रूटिंग टेबल को, द डेस्टिनेशन इज सी, द नेक्स्ट नोड रिस्पॉन्सिबल इज बी एंड द कॉस्ट नाउ इज 2. वाई इट इज 2? 1 + 1 विल गिव यू 2. सो ए अपने पैकेट को हैंड ओवर करेगा टू बी, बी पैकेट को देखेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस को वो कंसल्ट करेगा. हेयर द डेस्टिनेशन एड्रेस इज सी, द नेक्स्ट नोड रिस्पॉन्सिबल इज सी एंड द कॉस्ट एसोसिएटेड इज 1. सो ये पैकेट सी को डिलीवर करेगा, पैकेट जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन को पहुंच जाएगा. सो दिस इज़ अ वे कि किस तरह रूट एडवर्टीजमेंट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उसको प्रोपागेट करते हैं थ्रू आउट द नेटवर्क बाय शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द नेबर्स. अब सी के जो नेबर्स हैं वो उसको ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा, फिर उसके जो नेबर्स हैं वो उनको ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा, एंड द प्रोसीजर कंटिन्यू जब तक पूरे नेटवर्क को ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती. सो दिस इज इफ the cost of a link has been changed, and the node responsible will have to advertise this information or share this information with its neighbors. अब नेटवर्क टोपोलॉजी में सिर्फ लिंक की कॉस्ट चेंज नहीं होती, वी ऑलवेज हैव अदर सिनारियोस. ठीक है, कोई नोड ज्वाइन भी कर सकता है, कोई नोड जो है नेटवर्क लीव भी कर सकता है, कोई लिंक जो है वो अनअवेलेबल भी हो सकता है, एंड सो ऑन. अब जो DSDV है इसकी एक ब्यूटी है, एक क्वालिटी है, एंड दैट इज के इट विल इमीडिएट रिस्पॉन्स, it will give immediate response to the changes in the network topology, and that is a characteristic of this protocol. अब किस तरह ये रिस्पॉन्स करता है? बाय सेंडिंग इमीडिएट एडवर्टीजमेंट, रूट एडवर्टीजमेंट कि जो न्यू रूट्स हैं, जो ब्रोकन लिंक्स है, अगर कोई मैट्रिसेस चेंज है, दैट इज इमीडिएटली प्रोपेगेटेड टू इट्स नेबर. जिस तरह इस केस में हमने देखा एक लिंक की जो कॉस्ट है वो चेंज हो गई, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज इमीडिएटली शेयर्ड विद द नेबर्स, एंड द नेबर्स इन दिस केस इज ए एंड सी. अब ये जो रूट्स की इंफॉर्मेशन की जो अपडेट्स हैं इनको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं. एक को हम कहते हैं फुल, एक को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल. फुल अपडेट में क्या है? यू सेंड ऑल द रूटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन टेबल. इंक्रीमेंटल अपडेट में यू ओनली सेंड द एंट्रीज दैट हैज़ बीन चेंज. ओके, सो ऑब्वियसली जो फुल अपडेट है उसमें ओवरहेड ज़्यादा है, मैसेजेस का जो साइज़ है वो ज़्यादा है, जबकि इंक्रीमेंटल अपडेट में ओनली एंट्रीज आप सेंड करते हैं, सो आप सारे इंफॉर्मेशन को एक सिंगल पैकेट में अपडेट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी एन अनदर सिनारियो जहाँ पे आपके पास एक न्यू नोड है और वो हमारे नेटवर्क को ज्वाइन करने जा रहा है, एंड द न्यू नोड इज़ नोड D. So what will happen in this case? Let us see. The scenario is new node and the node is D. तो जैसे ही ये नोड नेटवर्क को ज्वाइन करेगा, it will propagate its information. It will broadcast for the first time, right? Its information, and the information is like this. जिस नोड के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, that is C, उसको ये बताएगा, hey, my ID is D. And I am directly connected with you, and this is my initial sequence number D000. Okay? जैसे ही ये इंफॉर्मेशन नोड C को रिसीव होती है, नोड C सबसे पहला काम क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन को अपने रूटिंग टेबल में इंसर्ट करेगा. So here you can see destination में now we have a new node inserted in the routing table of node C at node C, and that is D. और ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, एंड द कास्ट एसोसिएटेड इज 1, एंड द सीक्वेंस नंबर दैट हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द नोड D, द डेस्टिनेशन नोड और द न्यूली जॉइनिंग the newly node that recently joined the network, the sequence number is D000. अब C ने पहला काम क्या किया? अपने रूटिंग टेबल को अपडेट कर लिया. अब दूसरा काम C क्या करेगा? इस अपडेटेड रूटिंग टेबल को वो शेयर करेगा विद इट्स नेबर, और उसका जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है? वो B है. सो C इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा विद B, नॉट ओनली B बट आल्सो विद D, क्योंकि D भी तो किसी को, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द नेटवर्क. सो उसको भी तो रूटिंग टेबल बिल्ड करना है, उसको भी पैकेट सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं.
सो डी क्या करेगा, अपनी रूटिंग इन्फॉर्मेशन, इस केस में ये फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है विद इट्स इमीडिएट नेबर्स दैट इज बी एंड सी, अपने रूटिंग टेबल को शेयर कर रहा है। सो डी में पूरा टेबल जो है, डी पूरे टेबल को क्रिएट करेगा, जबकि बी जो है न्यू एंट्री एंड दैट इज अबाउट डी, वो करेगा। सो यहाँ पे रूटिंग टेबल ऑफ बी पे अभी आप देख सकते हैं कि वी हैव अ न्यू डेस्टिनेशन डी। अगर उसके लिए कोई पैकेट है सो सी इज़ रिस्पॉन्सिबल, सी इज़ द नेक्स्ट नोड इन द वे एंड द कास्ट एसोसिएटेड इज 2 दैट इज ऑब्वियसली 1+1 एंड द सीक्वेंस नंबर इज D000। अब बी क्या करेगा, इसने तो अपने टेबल को अपडेट कर लिया, अब बी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा विद इट्स नेबर। इसके नेबर कौन कौन से हैं, ए और सी। अब सी क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ए क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को सेव करेगा। ओके, नाउ वी हैव अ न्यू नोड, द आइडेंटिटी ऑफ द नोड इज डी। अगर कोई पैकेट सेंड करना है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, बी। कास्ट क्या होगी, 1 + 1 + 1 दैट इज 3 एंड द सीक्वेंस नंबर इज D100। ओके, नाउ सी द रोल प्लेड बाय द सीक्वेंस नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। DS में डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि वहाँ पे लूप्स प्रॉब्लम भी था और वहाँ पे काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम भी था, और फिर मैंने बताया था कि जो DSDV प्रोटोकॉल है वो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। हाउ, दिस इज़ द स्लाइड जो कि इसको एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जांपल, एट दिस लोकेशन जहाँ पे B अपने नेबर्स को इन्फॉर्म कर रहा है अबाउट द D, उसी टाइम पे डी ने जो है वो लिंक, उसका जो लिंक है वो अनअवेलेबल है, वो डाउन है, डी ने नेटवर्क को छोड़ दिया या लिंक इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिसीव होगी सी को, नोड सी विल डिटेक्ट द ब्रोकन लिंक। ओके, अब जब ब्रोकन लिंक डिटेक्ट होगा तो दो चीज़ें अकर होंगी। फर्स्ट थिंग, इन्फिनिटी, जो मैट्रिक है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करेगा कहता है नोड इज नॉट अवेलेबल और इज नॉट रीचेबल एनी मोर। सेकेंड थिंग, सीक्वेंस नंबर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड नाउ प्रीवियस जो सीक्वेंस नंबर था दैट वाज 100, द न्यू सीक्वेंस नंबर इज 101। अब इसने अपने रूटिंग टेबल को अपडेट कर लिया, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को अभी इसने अपने नेबर्स के साथ दैट इज बी शेयर नहीं किया, एंड ऑन द स्पॉट उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है फ्रॉम बी, हे आई हैव फाउंड अ न्यू नोड, जो कि इसको सी से ही मिली थी। एंड अगर आपने जो है उसको कोई पैकेट सेंड करना है सो दैट इज़ द कास्ट एसोसिएटेड एंड दैट इज़ द मैसेज सीक्वेंस नंबर D100। अब क्या होगा, जैसे ही ये मैसेज सी को मिलेगा, सी क्या करेगा, इस मैसेज को डिस्कार्ड करेगा। वाई, बिकॉज द सीक्वेंस नंबर इज आउटडेटेड। ठीक है, जैसे ही ये मैसेज सी को मिलेगा वो सीक्वेंस नंबर को इंस्पेक्ट करेगा, द सीक्वेंस नंबर इज लेस, 100 इज लेस देन 101, 101। सो ये क्या करेगा, इस मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा। नो, आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है दैट इज आउटडेटेड, डी तो अवेलेबल नहीं है, आई हैव द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड आई एम गोइंग टू शेयर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद यू इन अ वाइल, राइट। सो बाय यूजिंग दिस वे हम क्या कर रहे हैं, हम लूप्स को अकर होने नहीं दे रहे हैं, हम लूप्स को अवॉइड कर रहे हैं, एंड आल्सो वी आर अवॉइडिंग द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अगर ये सीक्वेंस नंबर ना होते सो ये मैसेज हमेशा जो है बी और सी के दरमियान जो है वो एक्सचेंज होता रहता। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि इमीडिएट एडवर्टीजमेंट होगी। अब डी क्या कर रहा है, उस पैकेट को उसने इग्नोर कर दिया एंड देन अपनी न्यू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी इसको वो शेयर कर रहा है विद बी। हे, जो डी की जो नोड डी है दैट इज नॉट अवेलेबल, इन्फिनिटी, एंड द न्यू सीक्वेंस नंबर इज 101। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन बी को मिलेगी तो सबसे पहले वो अपने टेबल को अपडेट करेगा, डी के लिए जो एंट्री है उसको वो अपडेट करेगा कि अभी पहले जो था वो कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक वाज 2, नाउ द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक इज इन्फिनिटी, एंड वाई बी विल कंसिडर द न्यू एंट्री, बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस नंबर वहाँ पे आउटडेटेड हो चुका है, 100 के ऊपर 101 आ गया है विच इज़ ग्रेटर देन 100, सो ये 101 को कंसिडर करेगा, 100 को इग्नोर कर देगा।
सिमिलरली बी दूसरा काम क्या करेगा, अपने नेबर को इन्फॉर्म करेगा, दैट इज ए, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन ए को मिलेगी। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन ए को मिलती है, ए विल डू द सेम थिंग, इट विल अपडेट इट्स रूटिंग टेबल। वहाँ पे जो एंट्री है डी के लिए वो पहले 100 सीक्वेंस नंबर से सेव थी, अभी जो है जो नया सीक्वेंस नंबर आ गया 101, तो वो ओल्ड को रिप्लेस कर देगा। And this is how we immediately propagate the advertisement throughout the network by using DSDV protocol, and how we avoid loop and infinity problems by using the DSDV protocol. So in summary, we have some advantages of DSDV protocol. And one of the advantages is its simplicity, like distance vector protocol. It is simple to understand, simple to implement, simple in its operation, and also it will handle the loop, it will guarantee the loop free environment by avoiding the loop and infinity problems. And इसको ये किस तरह avoid कर सकता है by using the sequence number, a very simple mechanism. Root discovery में latency is low. However, their disadvantage is कि जो सबसे बड़ा disadvantage है, there is overhead in the control information, in the routing information. जिस तरह हमने start में कहा था कि बाज़ औक़ात हम किसी लिंक को यूज़ करते ही नहीं है, but still जो इसकी information है वो from time to time वो communicate होती रहती है, propagate होती रहती है, advertise होती रहती है within the network, और जो कि है resources को utilize करती है, and other factors involved as well. और यहाँ पे कोई स्लीपिंग नोड्स नहीं है। स्लीपिंग नोड्स नहीं है मतलब सेंसर नेटवर्क्स में अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था कि नोड को की एनर्जी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए डिफरेंट स्टेट्स हम डिफाइन करते हैं। कभी नोड जो है वो स्लीपिंग मोड में होगा, कभी जो है वो एक्टिव मोड में होगा, कभी जो है वो किसी और मोड में होगा, कभी जो है वो ट्रांसमिट कर रहा होगा, कभी सिर्फ लिसन कर रहा होगा, कभी जो है कुछ भी नहीं कर रहा होगा। सो इस केस में आपके नोड्स एक्टिव रहते हैं बिकॉज दे नीड टू अपडेट इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर कोई टोपोलॉजिकल चेंजेस हैं तब भी they need to share the information, अगर नहीं है तब भी from time to time they need to share their full routing tables or their partial routing tables with their neighbors, right? So sleeping mode नहीं है, sleeping nodes नहीं है, तो इसका मतलब है कि एनर्जी आप ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। So that is an issue. So this was about our first mobile ad hoc network routing protocol, and the protocol that we studied is called DSDV protocol. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे एंड हम किसी दूसरे रूटिंग प्रोटोकॉल को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल से उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक अ गुड केयर ऑफ